बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इसमें हम फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस डिटरमिन कर लेंगे। सो लेट अस कंसिडर टू बॉडीज M1 and M2. This is M1, this is M2. M1 is moving with velocity v1I and M2 is moving in the same direction with the velocity v2I, and v1I is greater than v2I. This means कि after certain time ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगी, और कोलाइड करने के बाद ये इसके साथ स्टिक कर जाएगी। आप यूं समझिए कि ये एक ही बॉडी है। लेट इट बी लाइक दिस। जिसका मैस M1 प्लस M2 है। इसको इस तरह से दोबारा शो कर लिया गया है। इट्स मैस इज M1 प्लस M2। नाउ दिस विल मूव in the same direction VF. Let's write. We consider two bodies moving with velocities v1I and v2I. We consider two bodies, here two hard balls, of masses M1 and M2 moving with initial velocities v1I and v2I in the same direction. In the same direction. v1I is greater than v2I. ऐसा ही ना कि जो v1I है ये v2I से ज्यादा है, इसलिए ये उसके साथ कोलाइड कर सकेगी। आफ्टर कोलिजन M1 स्टिक्स साथ ही चिमट जाता है, उसके स्टिक्स टू M2, उसके साथ ही चिपक जाता है। एंड नाउ और अब इनका कंबाइंड मैस कितना होगा? Their combined mass is M1 plus M2 और फाइनल वेलोसिटी VF। The final velocity is VF। अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे जी। बाई
law of conservation of momentum by law of conservation of momentum. Initial momentum of the system should be equal to final momentum of the system. Initial momentum of the system should be equal to final momentum. Now, initial momentum of M1 is M1 V1I. Or initial momentum of M2 V2I. That should be equal to final momentum. Final mass is M1 plus M2. And final velocity is Vf. This is by law of conservation of momentum. From here, Vf. ये इसके नीचे आ जाएगा M1 V1I प्लस M2 V2I over M1 plus M2. This can be written as Vf is equal to M1 over M1 plus M2 V1I plus M2 over M1 plus M2 V2I. This is equation for final velocity of the combined mass. If M2 is considered to be at rest, then V2I, that is 0. If M2 is at rest, that is V2I is equal to 0, then this Vf is M1 over M1 plus M2 V1I. This is Vf. Let it be equation 1. Now the kinetic energy. As the collision is inelastic, kinetic energy is not constant. We shall determine loss in kinetic energy. Initial kinetic energy of the system. Initial kinetic energy of the system 1 over 2 M1 V1I square. 1 over 2 M1 V1I square. This is the initial kinetic energy. Final kinetic energy 1 over 2 final mass, that is the combined mass M1 plus M2 Vf square. Now loss in kinetic energy. Loss in kinetic energy. इसमें से इसको माइनस कर दें 1 over 2 M1
v1 I square minus 1/2 m1 plus m2 vf square. This is the loss in kinetic energy. Fractional loss in kinetic energy. Fractional loss in kinetic energy means loss in kinetic energy per unit kinetic energy. इसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिवाइड कर देंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे. सो वी शैल गेट 1/2 m1 v1 I square minus 1/2 m1 plus m2 vf square divided by 1/2 m1 v1 I square. This is the fractional loss in kinetic energy. अब हमने क्या करना है जी, Vf की ये वैल्यू यहां से उठा के इसको यहां पर पुट कर देना है. Putting the value of Vf from equation 1. तो ये फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m1 v1 I square माइनस 1/2 m1 प्लस m2 vf स्क्वायर. इसका स्क्वायर m1 ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू v1 I स्क्वायर. आई थिंक इट इज क्लियर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हमने क्या किया है, ये vf स्क्वायर इसको स्क्वायर करके यहां पर पुट कर लिया है. अब हमने इसको कुछ इस तरह से करना है. ये देखिए 1/2 m1 v1 I का स्क्वायर माइनस 1/2 दिस इज m1 स्क्वायर. इस m1 स्क्वायर में से एक m1 हमने यहां पर लिख लेना है, और ये v1 I स्क्वायर भी यहां पर लिख लिया. बाकी हमारे पास बच गया दिस वन m1 प्लस m2, और इसमें से एक m1 स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया है, ये भी लिख लिया है, एंड दिस विल रिमेन m1 और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा. I think it is clear. This is m1 square. m1 square में से m1 हमने ये लिख लिया है, और m1 ये m1 स्क्वायर ही बन गया है, और ये v1 I स्क्वायर को भी इसके साथ मिला दिया है. ये भी देखिए ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही बन गई है. तो अब हम इसमें से ये 1/2 m1 v1 I स्क्वायर ये कॉमन निकाल सकते हैं, और हमने इसको निकाल देना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 I square. दिस इज कॉमन. इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस ये बाहर आ गई है. ये देखिए ये m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर के साथ काट सकते हैं. तो बाकी हमारे पास ऊपर m1 रह गया है, और नीचे
ये स्क्वायर इसके साथ कट गया है, ये m1 प्लस m2 रह गया है। दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, सो दिस विल बी 1/2 divided by this 1/2 m1 v1 square. Putting the values of Vf from equation 1, we get this divided by 1/2 m1 v1 I square. Kinetic energy initial minus kinetic energy final over kinetic energy initial. This is equal to 1/2 m1 v1 I square minus 1/2 m1 plus m2 m1 over m1 plus m2 का स्क्वायर एंड v1 I का स्क्वायर। इसी को हमने ये यहां पर लिख लिया है, नीचे स्पेस कम लग रही है, और डिवाइडेड बाय 1/2 m1 v1 I square. नाउ अब हम इसको भी रेस कर देते हैं। These are somewhat lengthy calculations. अब देखिए जी, अब हमने यूं करना है 1/2 m1 v1 I square माइनस 1/2, ये m1 स्क्वायर है, एक m1 हमने यहां पर लिख लेना है, और ये v1 I स्क्वायर ये भी हमने यहां पर लिख लेना है, और बाकी हमारे पास बच जाएगा ये m1 प्लस m2 m1 स्क्वायर में से एक m1 हमने यहां पर लिख लिया है, पीछे एक m1 बच जाएगा जी, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर ही रह जाएगा, और इस m1 स्क्वायर में से एक m1 हमने यहां पर लिख लिया है, एक m1 यहां पर लिख लिया है, और ये v1 I स्क्वायर ये भी हम लिख चुके हैं, और डिवाइडेड बाय 1/2 m1 v1 I स्क्वायर। इसमें से 1/2 m1 v1 I स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, और हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस ये 1/2
m1v1 कॉमन आ गया है और ये m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, इसके साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2 m1 v1 I square. Now this m1 v1 I square, it cancels with this and there remains 1 minus m1 over m1 plus m2. Equation is very simple now. इसका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 divided by m1 plus m2. This m1 cancels with this one and the fractional loss in kinetic energy, that is equal to m2 over m1 plus m2. This is the fractional loss in kinetic energy. और इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा। इसको गौर से और तवज्जो से आपने ज़रा प्रैक्टिस करनी है। देन यू कैन राइट इट एट अटेम्प्ट इट। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।